Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discover two topics. One is submandibular salivary gland and the other one is sublingual salivary gland. First we will start with the submandibular salivary gland. As you already know, the salivary glands are the glands which produce saliva, and the submandibular salivary gland is one of the major salivary gland. Okay. So about its size, the size of the submandibular salivary gland is about the size of walnut, and it is about 15 to 20 gram in its weight, and the shape is J-shaped. Okay, now we will start with the theory, that is the submandibular gland consists of a mixture of serous and the mucus acini. That means it is going to produce both secretions, means it is going to be producing the saliva, mucus secretions of the saliva and the serous secretions of the saliva. That means it will both be watery as well as mucus. Okay, then where it is location, it lies beneath the lower border of the body of the mandible की बॉडी के लोअर बॉर्डर के बिलो, उसके बिलो हमारे पास क्या होता है, सबमैंडिबुलर salivary gland होता है, and it is divided into the two parts. Again, like the parotid gland, it is also divided into two parts, one the superficial and other the deep part. But the parotid gland was divided by actually the facial nerve, while the submandibular salivary gland is divided by the mylohyoid muscle. Okay, now we will start with the superficial part and the deep part separately, but here we will read its line that reads, the deep part of the gland lies beneath the mucous membrane of the mouth on the side of the tongue. अब इसको हम मजीद समझने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए ना आगे मूव करते हैं. जब हम सेपरेटली सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट के रिलेशंस पढ़ेंगे, और रिलेशंस विद द एंटीरियरली, पोस्टीरियरली उनके क्या होता है, अबव क्या होता है, बिलो क्या होता है, तब हमारे पास सेपरेटली इनके रिलेशंस हैं, और ये रिलेशंस आपने लाजमी करने हैं. ये रिलेशंस स्नेल में मेंशन नहीं है, बट अगेन आई एम सेइंग, मैं जो भी पढ़ाती हूँ यूएचएस एलओस के मुताबिक होता है, तो एलओस में मेंशन है कि रिलेशंस करने हैं, इसलिए हम रिलेशंस करेंगे. और इसके अलावा इसकी जो वास्कुलर सप्लाई है वो भी स्नेल्स में मेंशन नहीं है, सिर्फ नर्वस सप्लाई दी हुई है, लेकिन वास्कुलर सप्लाई अगेन उन्होंने यूएचएस ने एलओस में पूछी हुई है, तो हम वास्कुलर सप्लाई को भी कवर करेंगे. Now first we will start with the superficial part of the submandibular salivary gland. So in the superficial part of the submandibular salivary gland, it is the largest part, and it is basically, you can say, superficial to the muscle mylohyoid. Now basically the mylohyoid muscle is the one that is dividing the gland into the superficial part and the deep part. Now surely the superficial part would be above the, or superficial, the mylohyoid muscle. Now where it fills the digastric triangle. Its location, the location of the superficial part is in the digastric triangle. Now what is the digastric triangle? Here in this diagram is basically from the BD, and here you can see the superficial part and its relation. Now you can see that it is extending up to the mylohyoid line. Here you can see up to the, you can say, the mandible, submandibular fossa, and this is the mandible. Okay, and then this is the teeth, and this is the mandibular canal with its inferior alveolar nerves and vessels that are in superior relation with the superficial part of the submandibular gland. Then this is the submandibular fossa. So actually the submandibular gland is located in the submandibular fossa. Same goes for the sublingual gland. Sublingual gland is also located in the sublingual fossa. So this is the submandibular fossa, and this is the base of the mandible shown here. Now we will read further. So basically the two fascia and the mylohyoid line and this fossa, this is actually forming a triangle that is called the digastric triangle, extends superiorly deep to the mandible up to the mylohyoid line. वही बात की हुई है कि सुपीरियरली माइलोहायोइड लाइन तक जा रहा है, इन्फीरियरली ओवरलैप्स कर रहा है स्टाइलोहायोइड और पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डाइगैस्ट्रिक. अब इन्फीरियरली इसके नीचे क्या है, ये तो सुपरफिशियली हम देख रहे हैं, वो इन्फीरियरली यहाँ रिलेशन शो नहीं करवाया गया, उसके लिए हम अलग से पिक्चर देखेंगे. अभी रिलेशंस रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अच्छा, अब इसके सुपरफिशियल पार्ट को हम फर्दर 3 सर्फेसिस में डिवाइड करते हैं. द वन विल बी द इन्फीरियर सर्फेस, other one will be the lateral surface, and the last one will be the medial surface. There is no superior surface. One is inferior and the other two are lateral and the medial surfaces. Now moving towards the relation, which are very important to understand its anatomical location. Okay, so in relations we will separately discuss the relations of the inferior surface, lateral surface and the medial surface. Now inferior surface इसकी हमारे पास जो है वो covered होती है, या इसके inferior surface के जो हमारे पास relation में होते हैं, क्या होता है, प्लेटिज्मा होता है, cervical branch of the facial nerve होती है, इसके अलावा deep fascia होता है, facial vein होती है, submandibular lymph nodes होते हैं.
अब इसको हम जो है ना एक वीडियो मैं प्ले कर रही हूँ, उस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा जनरली तमाम रिलेशंस का। वीडियो में जो है वो मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज इट इज़ AI जनरेटेड वीडियो. आई हैव जस्ट गिवन द प्रॉम्प्ट and the AI has generated the video, so you just have to take a anatomical concept, or you can say a visual memorization image. Don't focus on the minor details. Okay. Here you can clearly visualize the further details of the superficial relations, and here you can see this is the inferior surface, this is basically the lateral surface, and this one here shown at the side, this one is the medial surface. Now let's move toward the relations of the inferior surface. So basically this is shown the inferior surface of the submandibular gland. This is basically submandibular gland. Now inferiorly अगर हम उसके relations में बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, ऊपर skin है, then हमारे पास क्या होगा कि प्लेटिस्मा होगी. दिस इज बेसिकली द प्लेटिस्मा, दिस मस्कुलर लेयर. आपने ये वीडियो में भी थोड़ी सी आई होगी तो वहाँ भी विजुलाइज कर ली होगी आपने, ठीक है ना. उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साथ ही क्लोज रिलेशन में है जी सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. फेशियल नर्व की ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच कैसे आ रही है ये भी देख सकते हैं. देन फेशियल वेन्स आ रही है हमारे पास बोथ साइड से, ये नजर आ रही होंगी आपको ब्लू वाली, और ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं. तो बेसिकली दीज आर ऑल द रिलेशंस ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ओके. नाउ फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेटरल सरफेस रिलेशंस. अब अगर हम लेटरल सरफेस के रिलेशंस की बात करें तो लेटरल सरफेस के रिलेशंस में भी हमारे पास फर्दर दिखाया गया है कि लेटरली इसमें लेटरल सरफेस दिखाई गई है हमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, ठीक है. सबमैंडिबुलर ग्लैंड हमें सबमैंडिबुलर फोसा ऑफ द ऑन द मैंडिबल दिखाया गया. लेटरली हमारे पास सबमैंडिबुलर फोसा ऑन द मैंडिबल आपको विजुअलाइज होगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड के लेटरली. इसके अलावा हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड मसल की जो है वो इंसर्शन आपको विजुअलाइज हो रही होगी, ठीक है. और इसके अलावा आपको फेशियल आर्टरी. अब देखें ग्रूव्स द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस सी जो है मीडियल पैनल. असल में यहाँ ये कहला जा रहा है कि इधर जो बीडी में है उन्होंने दिया हुआ है कि ये मीडियली जो है ना लेटरल रिलेशंस में दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो फेशियल आर्टरी है वो मीडियली आती है, पियर्स करती है और उसके बाद फिर वो लेटरल रिलेशन में आती है, ठीक है. तो वो इस चीज़ को उसने क्लियर किया हुआ है, ठीक है. अब ये हमारे पास इंफीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस के रिलेशंस मुकम्मल हुए, लेकिन अभी हमारे पास मेन जो है इसकी मीडियल सरफेस है, उसके रिलेशंस की बात करते हैं. तो मीडियल सरफेस की रिलेशंस की बात करें हमारे पास, तो मीडियल सरफेस के रिलेशंस को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि एंटीरियर, मीडियल सरफेस के एंटीरियरली क्या होगा, मीडियल सरफेस के मीडियली क्या होगा. दिस वन इज द हेयर शोन इज द मीडियल सरफेस था. इसके एंटीरियरली क्या होगा, इसके मीडियली क्या होगा, इसके मिडल पार्ट में सॉरी क्या होगा, और इसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर में. अगर हम देखें तो ये पीछे हमारे पास सब मैंडिबुलर हमारे पास ग्लैंड दिखाया गया है. तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के एंटीरियरली अगर हम देखें तो एंटीरियरली वी विल हैव द माइलोहायोइड मसल, देन वी विल हैव द सबमेंटल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी होगी, और इसके अलावा माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स होगी. ओके. एक बात जो है वो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि हम इस चीज़ को विजुलाइज करके और हर चीज़ को इतना डीपली क्यों देख रहे हैं. ये मैंने पिक्चर्स आपके लिए जनरेट किए हैं. ये पिक्चर्स ना तो किसी बुक में थी ना ही मुझे एटलस में मिल रही थी, ये स्पेसिफिकली आपके लिए जनरेट किए हैं मैंने. और ये जो है नोट्स के लिंक में प्रोवाइडेड नहीं होंगी, क्योंकि नोट्स के लिंक में मैंने सिर्फ डाटा जो आपको याद करने के लिए होता है, जिसमें एक्जैक्टली स्नेल्स की लाइन और BD से जो एडिशन वाले पॉइंट्स होते हैं जो एलोज में उन्होंने मांगे होते हैं, मैंने वो ऐड किए होते हैं. अगर आपको ये स्लाइड्स और ये विजुअल इमेजेस जो मैंने जनरेट की होती हैं ये सेपरेटली चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. कमेंट करेंगे तो मैं अपनी जीमेल शेयर कर दूंगी आपसे, अपनी जो है वो बिजनेस जीमेल या ईमेल शेयर करूंगी, उसके ज़रिए मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी. अगर आप मांगेंगे तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह. तो अब हम अगर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस, तो एंटीरियर पार्ट में हमारे पास क्या था, सबमेंटल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी होगी, ऊपर माइलोहायोइड मसल ऊपर आ रहा होगा, इसके अलावा माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स. माइलोहायोइड के ही रिलेशन में माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स और इसके अलावा फेशियल आर्टरी आ रही होती है. फेशियल आर्टरी और इसके रिलेशंस को, ये कहाँ फेशियल आर्टरी का कोर्स होता है हमने पैरोटिड ग्लैंड में अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको ये अब तक क्लियर होना चाहिए था. उसके बाद मिडल पार्ट की अगर हम देखें, ये मिडल पार्ट आ जाता है. मिडल पार्ट में हमारे पास हायोग्लॉसस मसल आता है, सामने से ये स्टाइलोग्लॉसस मसल नजर आ रहा है. इसके अलावा लिंगुअल आर्टरी, क्योंकि इसके बिल्कुल मिडल पार्ट में मीडियली इसके मिडल साइड पे क्या होगा, मीडियल सरफेस के मिडल पार्ट के सामने हमारे पास टंग होती है. बेसिकली अगर आप विजुअलाइज खुद भी करें,
अपने ब्रेन में, तो वहाँ कौन सी आर्टरी आ रही होगी, लिंगुअल आर्टरी। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि लिंगुअल आर्टरी होगी। और अगर लिंगुअल आर्टरी है तो लिंगुअल आर्टरी ने जाके आगे कौन से मसल सप्लाई करने हैं भाई, हायोग्लॉसस, टाइलोग्लॉसस। जाहिर सी बात है एक्सट्रिंसिक मसल्स जो हमारे पास पीछे से आ रहे हैं या जो मसल्स ऑफ द टंग उनको सप्लाई करेगी। इसके अलावा एक नर्व आ रही होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। अब हाइपोग्लॉसल नर्व का भी हमारे पास जो है टंग से बहुत क्लोज रिलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका पॉइंट है। अगर आपने टंग वाला लेक्चर सुना होगा तो आपको ये क्लियर होगा, अगर नहीं सुना तो इसके बाद लास्ट में जाके टंग वाला लेक्चर ज़रूर सुने। उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे पोस्टीरियर। अगर हम मिडल इसके जो मीडियल सरफेस के रिलेशंस में पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमारे पास नीचे स्टाइलोहायोइड मसल नजर आएगा। बेसिकली स्टाइलोहायोइड मसल थोड़ा नीचे से जा रहा होता है क्योंकि इसकी नीचे से स्टाइलॉइड प्रोसेस से साइड से आ रही होती है। और इसके अलावा स्टाइलोग्लॉसस मसल हमें मिलेगा। ग्लॉसस मसल्स ने स्टाइलोग्लॉसस मसल्स वैसे ही लेटरली आके, हमने ओरोफेरेंजियल इस्थमस में बात की थी कि वो आके अटैच होता है टंग के साथ, तो ये पोस्टीरियरली आ जाएगा रिलेशन में। इसके अलावा हमारे पास 9th नर्व होगी, दैट इज द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी इन्हीं मसल्स की रिलेशंस में आती है, तो आपने ये यहाँ से याद रख लेना। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, अगर आप इस तरीके से और इन पिक्चर्स को खोल के भी एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी रिलेशंस। ठीक है ना। अब हमारे पास हम वापस मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर salivary gland. So the deep part will be smaller in size and it will lie deep to the mylohyoid. As you all know that the mylohyoid muscle was actually dividing the submandibular salivary gland into the superficial part and the deep part. So the superficial part was superficial to the mylohyoid. Ultimately that means the deep part will lie deep to the mylohyoid, and again it will be superficial to two muscles, hyoglossus and styloglossus muscle. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे पास अप्लाइड होता है जिसको हम कहते हैं कि डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज एक्चुअली सैंडविच्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द मसल. One will be the mylohyoid and the other layer will be formed by the hyoglossus and the styloglossus muscle. Okay, and posteriorly it is continuous with the superficial part around the posterior border of the mylohyoid. You can understand it further when we will discuss it in the image, and then anteriorly it extends up to the posterior end of the sublingual gland. Okay, so relations, अब हम इसको जो है वो एक पिक्चर से विजुअलाइज करेंगे. Okay, so in this picture you can see the sandwich theory that I was talking about. That is the mylohyoid muscle. Now you can see it is more of lateral and superficial relation. As you can see, it is more on the lateral and the superficial. As you can see, the deep part of the submandibular gland is slightly below, but it is not exactly beneath the mylohyoid muscle, but it is slightly below the mylohyoid muscle. Okay, and then the styloglossus muscle and the hyoglossus muscle, that is forming, you can say, the सैंडविच लेयर में हमारे पास माइलोहायोइड सुपरफिशियल लेयर बना रहा है, तो इसके दरमियान जो इसका सैंडविच का कंटेंट है, यू कैन से दैट इज द डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इटसेल्फ, एंड देन अगेन द बॉटम लेयर विल बी फॉर्म्ड बाय द हायोग्लॉसस एंड द स्टाइलोग्लॉसस मसल्स, जस्ट लाइक द पिक्चर. ओके, and as you can also see, it is continuous with the superficial part around the posterior border of the mylohyoid. So it is the posterior border of the mylohyoid, and superficially the deep part of the submandibular gland is continuous with it. Okay, then about the superior relation, we have the lingual nerve with the submandibular ganglion that is above the deep part. Okay, and its ganglion is also present. As you can see, this is the ganglion extended from the lingual nerve, and then below we will have the hypoglossal nerve. Okay, एंड देन एंटीरियर एक्सटेंट में हमारे पास दिखाया गया है कि माइलोहायोइड मसल आ रहा है, और वो एंटीरियरली, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड क्योंकि कंटिन्यूस हो रहा है सुपरफिशियल पार्ट के साथ, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहायोइड के साथ, तो एंटीरियरली एक्सटेंड करेगा. इट विल एक्सटेंड अप टू द सबलिंगुअल ग्लैंड. एक्चुअली द सबलिंगुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट एंटीरियरली टू द सब डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, बट इट इज शोन हियर beneath, or you can say below, the mylohyoid muscle and the hyoglossus muscle. You can actually see a small part of the sublingual gland here. Okay, so that was all about the relations of the deep part of the submandibular gland. Now we will come back to our topic, submandibular salivary gland. इसके anatomical relations हमने सारे पढ़ लिया यहाँ तक. Now about the duct, submandibular gland duct. The duct of the submandibular gland is actually also called the Wharton's duct, and it emerges from the anterior end of the deep part of the gland. Now we have already seen the anterior, posterior, superficial and the inferior relations of the deep part of the gland. So it actually emerges from the
anterior end of the deep part of the gland, and then it runs forward beneath the mucous membrane of the mouth and then opens into the mouth on a small papilla. अगर आपने टंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा या टंग वाला लेक्चर लिया हुआ है, आपने नहीं लिया तो लाजमी जाके ले लें, बहुत ज़्यादा रिलेशन में है टंग, अगर आपने लिया होगा तो ही आपको समझ आएगा। तो टंग में हमने डिस्कस किया था कि जब हमने फ्रेनुलम ऑफ द टंग की बात की थी, फ्रेनुलम ऑफ द टंग इज एक्चुअली द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज बीनीथ द टंग एंड दैट इज एक्चुअली टाइंग द inferior surface of the tongue with the floor of the mouth, you can say. So on lateral side, on both lateral side of the frenulum of the tongue, we will have the small papilla on which the submandibular duct of the submandibular gland was actually opening. So that's all about the Wharton's duct. Now about the blood supply, so it will be supplied by the facial artery, and about the venous drainage, it will drain into the common facial or lingual vein, okay. And about the lymphatic drainage, its lymph will pass to the submandibular lymph nodes. Now when we have discussed the सुपरफिशियल पार्ट के हमने इंफीरियर सरफेस के रिलेशन जब हमने डिस्कस किए हैं, तो हमने अच्छी तरह से ये देख लिया कि यहाँ से मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स कैसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लिम्फ ड्रेनेज आएगी, ये आप देख सकते हैं दोबारा भी, ठीक है। अब हमारे पास हमने जो नेक्स्ट बात करनी है वो है इसकी नर्व सप्लाई, दैट इज़ द वेरी मेन टॉपिक, और आप कह दें कि बस यही सबसे ज़्यादा मेन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रेटोमोटर फाइबर्स टू द ग्लैंड। असल में अब हमारे पास इसका बहुत लंबा कोर्स है, स्नेल्स में सिर्फ इसे 3 लाइंस में एक्सप्लेन किया हुआ है, हम याद उतना ही करेंगे, लेकिन उसको समझना है, उसको एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करना है कि असल में भाई सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस अब हमें क्या पता कहाँ है, नर्वस इंटरमीडिएट्स क्या है, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व कौन सी नर्व है, कहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कहाँ जाके रिले करें आगे, फिर हमारे पास जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक, फिर प्री गैंग्लियोनिक के सारे फाइबर्स। तो इसको हमने विजुअलाइज किया हुआ है इस AI जनरेटेड पिक्चर से, मैंने प्रॉम्प्ट देके जनरेट की हुई है। अगेन अगर आपको पिक्चर या ये जो नोट्स हैं, नोट्स के अलावा ये जो मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ रिलेशंस के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स ट्रेस द सेक्रेटोमोटर फाइबर्स टू द ग्लैंड स्टेप बाय स्टेप। So first, you can say the signal will arise or you can say arise in the superior salivatory nucleus in the pons, okay. Then it will travel via the nervous intermediates that will carries the preganglionic parasympathetic fibers, and then the facial nerve, that the preganglionic parasympathetic fibers will join the facial nerve, and then the facial nerve हमारे पास आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी अपनी ब्रांचेस में। वन ऑफ इट्स ब्रांच द कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व देन विल कैरी द फर्दर फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ओके। कॉर्डा टेम्पनाई नर्व के बाद कॉर्डा टेम्पनाई नर्व के जो फाइबर्स हैं और या वो ज्वाइन करेगी लिंगुअल नर्व, दैट इज आल्सो द ब्रांच, actually the ventral third branch, lingual nerve, and then the lingual nerve and the chorda tympani nerve, these fibers will actually arrive at the submandibular ganglion where there will be the relay of information, there will be the synapse formation, then the preganglionic fibers synapse here and they will end here, then it will be the duty or you can say they will carry on their duty to the postganglionic fibers, then the postganglionic fibers carry करेंगे secretomotor, वही इसकी parasympathetic fibers को to the further glands, submandibular and the sublingual glands. Now that is the main point. Actual में सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स की जो हमारे पास नर्व सप्लाई है या जो नर्व कोर्स है पूरा वो सेम कोर्स है। पोन्स में वही कॉर्डा टिम्पनाई, फेशियल नर्व, लिंगुअल नर्व और फिर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के जरिए ही दोनों को जा रही है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों की हमने नर्व सप्लाई पढ़ ली है, ठीक। नाउ वी विल फर्दर कंटिन्यू विद द क्लिनिकल नोट्स ऑफ द सबमैंडिबुलर salivary gland. So basically the most common clinical condition associated with the submandibular salivary gland is the calculus formation. Now the submandibular salivary gland is common site for the calculus formation, and this condition is actually very rare than the other salivary glands. That means it only or commonly occurs only in the submandibular salivary gland, and then the reason behind this is the presence of a tense swelling below the body of the mandible which is greatest before or during a meal and is reduced in size or absent between the meals is diagnostic of this condition. तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि कैलकुलस फॉर्मेशन के अगर पेशेंट खाना खा रहा है या खाना खाने से पहले, ठीक है, उसकी हमारे पास क्या है कि वो जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो जब उसने खाने वक्त का खाना खा लिया और अभी दूसरे वक्त का खाना खाना है, ये दैट मीन्स सिंपली मीन्स आफ्टर अ मील उसकी जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल हो रही है, दैट मीन्स दैट देयर इज सम कंसर्न एंड द कंसर्न इज द कैलकुलस फॉर्मेशन, ओके।
and the examination of the floor of the mouth will further reveal the absence of the ejection of the saliva, okay, saliva from the orifice of the duct of the affected gland. Why? क्योंकि कैलकुलस फॉर्मेशन होगी, कैलकुलस स्टोन्स होते हैं, वो डक्ट को वार्टन्स डक्ट में आ जाएंगे, उसको और हाल्ट कर देंगे हमारे जितनी भी जो है वो स्लाइवा सेक्रेशंस होगी, और इसको हम इजीली जो है वो स्टोन को पैल्पेट भी कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज यू नो इट इज ओपनिंग, इट्स जो वाटसन्स डक्ट है इसकी बेसिकली इट opens on the floor of the mouth. So floor of the mouth actually it is only covered by the mucous membrane mainly. So here you can palpate it easily. Okay. Then the second clinical note is about the submandibular lymph node enlargement and the submandibular salivary gland swelling. Okay. सो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हमारे पास कॉमनली हमारे पास इलार्ज हो जाते हैं अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाए, स्कैल्प की हो जाए, चाहे वो फेस की हो जाए, चाहे वो मैक्सिलरी साइनस की हो जाए या ओरल कैविटी की हो जाए, तो हमारे पास सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हो जाते हैं। अब कॉमनली इलार्ज की हो जाते हैं क्योंकि ये ड्रेनेज ले रहे होते हैं, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हमारे पास लिम्फ ड्रेन कर रहे होते हैं, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे। अगर सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे तो भाई उसके हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वो टीथ का इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, हमारे पास पेनफुल इनलार्जमेंट का हो जाएगी जिसकी वजह से टीथ कंप्रेस हो जाएंगे और यू कैन से प्रेस हो जाएंगे जिसकी वजह से टीथ में पेन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फर्दर एसोसिएट एरियाज को जो है वो डिप्रेस करेंगे जिसमें हमारे पास क्या है सबमैंडिबुलर ग्लैंड उसकी आपने कहा कि सुपरफिशियल पार्ट के इंफीरियर सरफेस क्लोज रिलेशन में होती है, तो क्या होता है कि उधर भी पेन हमारे पास इंड्यूस कर देते हैं। अब पेन जो है वो ओवरऑल हमारे पास जो है वो इंड्यूस हो जाता है यू कैन से ऑन द लोअर जा, मोर ऑफ द लोअर जा में, तो उससे क्या है कि उसे बाज़ पेशेंट या डॉक्टर जो है वो क्लिनिशियन वो कंफ्यूज कर लेता है कि शायद सबमैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग हो गई है, तो वो यही कह रहे हैं कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग को सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड की स्वेलिंग के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। सबमैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग में सिर्फ सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ही जो हमने पहले डिस्कस किए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बट इन द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वेलिंग देयर विल बी more or less of other situations will also be created, that like the pain in the teeth and on the depression or you can say the pressing or compressive of the other structures. Okay, so that was all about the submandibular salivary gland. Now we will further continue with the sublingual gland. Now let's start sublingual gland. So basically sublingual gland is composed of both serous plus mucus acini, but predominantly it is it is more of mucus secreting, and it is smallest of the major three salivary glands, and it is almond shaped and its weight is about 3 to 4 gram. Now the sublingual gland lies beneath the mucous membranes, that is the sublingual fold of the floor of the mouth, close to the frenulum of the tongue. नाउ अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेनुलम ऑफ द टंग क्या है। एक्चुअली ये हमारे पास एक जो है वो मेम्ब्रेन है या म्यूकस फोल्ड है जो टाई कर रहा है इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ, तो उसके हमारे पास क्या है उसके बेसिकली क्लोज रिलेशन में होती है, और यू कैन से मोर ऑफ द लेटरल टू द फ्रेनुलम ऑफ द टंग वी हैव द सबलिंगुअल फोल्ड and beneath which we have the sublingual gland, and in the sublingual fold we have also the opening of the sublingual ducts, and sublingual ducts are actually 8 to 20 in number. अब इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं कि सबलिंगुअल फोल्ड ये टंग को ऊपर किया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है हमने, इंफीरियरली हम टंग को व्यू टंग की साइड हमें नजर आ रही है, तो एक वी शेप यहाँ पे आप देखें स्पेस से क्रिएट हो रही है, एरिया से क्रिएट हो रहा है, जहाँ एक सबलिंगुअल पेपिलाई कहाँ जहाँ पे हमारे पास सबलिंगुअल जो डक्ट है उसने ओपन होना है और सबलिंगुअल फोल्ड बन रहा है, यहाँ उस पर हमारे पास जो है वो मल्टीपल पेपिलाइज की ओपनिंग हो रही है और एक रफ सी जो है वो स्पेस हमारे पास क्रिएट हो रही है वी शेप, ये एक्चुअली हमारे पास क्या क्रिएट कर रहा है सबलिंगुअल फोल्ड। ठीक है, it is also discussed in BD that actually the sublingual gland is present above the mylohyoid muscle, and it is actually medial to the sublingual fossa of the mandible, and it is lateral to actually the genioglossus muscle. अगर आगे हम जब रिलेशंस को पढ़ेंगे तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके रिलेशंस की बात करें तो फ्रंट पे हमारे पास क्या है, ये मीट्स कर रहा है ऑपोजिट साइड ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड, मतलब एंटीरियरली अगर हम देखेंगे तो ऑपोजिट साइड ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ ये हमारे पास मीट कर रहा होगा। इसको हम जो है एक पिक्चर है उससे एनालाइज कर लेते हैं, आपको मजीद अच्छे से डिटेल से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये जो पिक्चर है ये बहुत अच्छी तरह डिपिक्ट करती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो बेसिकली दैट इज द फ्रंट relation of the sublingual salivary gland. Now here you can see the the sublingual salivary gland is actually meeting the opposite side of the sublingual salivary gland. So that's the front view.
नाउ इन द अबव अगर हम ऊपर सुपीरियरली देखें, इसके सुपीरियर रिलेशन में देखें तो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ ने कवर किया हुआ है सबलिंगुअल ग्लैंड को। यहाँ पे एक्चुअली कट किया हुआ है, ये थोड़ी सी म्यूकस मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इसने कम्प्लीटली कवर किया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसके लेटरल रिलेशंस में जाएं, लेटरल तो लेटरली हमारे पास इसके क्या होगा, सबलिंगुअल फोसा ऑफ द मैंडिबल होगी। मैंडिबल के ऊपर सबलिंगुअल फोसा होता है जहाँ लेटरली ये फिट कर रहा होता है, ठीक है, हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद अगर हम इसको मजीद आगे देखें कि इसके पीछे क्या होगा, तो सबलिंगुअल ग्लैंड के बिल्कुल पीछे हमारे पास ये डी पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड के साथ क्लोज रिलेशन में आ रही होती है। अब यहाँ अगर हम इसको मजीद जूम करके देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्चुअली जो है हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, एंड दैट इज एक्चुअली द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। उसका डी पार्ट शो किया गया, तो उसके बिल्कुल जो है सबलिंगुअल ग्लैंड है उसके बिल्कुल बिहाइंड जो है हमारे पास क्या है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। और यू कैन से द सबमैंडिबुलर ग्लैंड के एंटीरियरली जो है वो हमारे पास क्या है जी, सबलिंगुअल ग्लैंड, उसके डी पार्ट के रिलेशन में बात करें। फिर हमारे पास बिलो अगर हम नीचे बात करें तो नीचे इसके माइलोहायोइड मसल होता है, ये स्ट्रैप लाइक से एक मसल आपको नजर आ रहा होगा, जो यही माइलोहायोइड मसल हमने पढ़ा कि फिर नीचे होता है, क्योंकि इसके हमने कहा बीनीथ होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को कौन सा मसल पास कर रहा था, हमारे पास माइलोहायोइड मसल ही पास कर रहा था, जो सुपरफिशियल और डीप पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो दैट मीन्स उधर से आप ऐसे किया करें, कनेक्शंस बनाया करें, कनेक्शंस बना के जब चीज़ें याद रखेंगे ना, तो मेमोरी जब आप एक पिछली मेमोरी को अगली मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे साइनेप्स है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारे पास जो एक नेटवर्क सा बना हुआ है वो मजीद स्ट्रॉन्ग और रिफाइन हो जाता है। तो वही कि हमारे पास इसके मतलब अगर हमारे पास माइलोहायोइड ने ही क्रॉस पास किया है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को और सुपरफिशियल और डीप पार्ट में डिवाइड किया, और जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो सबलिंगुअल ग्लैंड के ही नीचे प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स कि सबलिंगुअल ग्लैंड के नीचे अगर हमारे पास कौन सा रिलेशन आएगा, माइलोहायोइड मसल का भी रिलेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसके मीडियली देखें तो मीडियली हमारे पास जीनियोग्लॉसस मसल होगा, जो फ्रंट में जाके जीनियल ट्यूबरकल्स ऑफ द मैंडिबल पे जाके अटैच हो रहा होगा या इंसर्ट कर रहा होगा, ये टंग का मसल होगा। इसके अलावा ब्लड सप्लाई की बात की गई है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे फ्रॉम द लिंगुअल आर्टरी एंड फ्रॉम द सबमेंटल आर्टरी शो की गई है। ये देखें, एक सब लिंगुअल आर्टरी से आ रही, सबमेंटल आर्टरी से। ये सिर्फ आपको जो है वो 3D एक एनिमेशन से प्रोवाइड की हुई है, असल में यूँ नहीं होता, ठीक है। सो हमारे पास रिलेशंस भी हो गए और इसकी हमने जो है वो आर्टीरियल सप्लाई भी पढ़ ली है। और नर्व सप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसकी, कि नर्व सप्लाई सेम है जी, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड का नर्व पैसेज, नर्व कोर्स एक्जैक्टली सेम है। नाउ द लास्ट थिंग टू डिस्कस इज द क्लिनिकल नोट्स। सो एक्चुअली द सबलिंगुअल salivary gland is associated with cyst formation. Likewise, the submandibular gland was associated with the calculus formation. The sublingual gland is associated with the cyst formation. Now, the sublingual gland, which lies beneath the sublingual fold of the floor of the mouth, it opens into the mouth by numerous small ducts. वही हमने बात की, it opens into the mouth on the summit of the sublingual papilla, on the sublingual fold, that is the V-shaped, we have already discussed, by numerous small ducts that was about 8 to 20 in number, okay. And then the blockage of one or more of these ducts is believed to be the cause of cysts under the tongue. अगर कि हमारे पास जो भी डक्ट कैरी करी है, अगर किसी भी एक डक्ट में या एक से ज़्यादा डक्ट में हमारे पास अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, या फर्स्ट करें कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई आपका फूड पार्टिकल, दैट इज़ मोर और लेस ऑफ अ क्लिनिकल कंडीशन, कि फूड पार्टिकल इतना स्मॉल नहीं होता कि वो वहाँ तक कर जाए एंटर। बहरहाल अगर ऐसी कोई क्लिनिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो ये हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन की तरफ लीड कर सकता है, मगर इट इज़ नॉट अ कैंसरस कंडीशन, ओके। सिर्फ सिंपल सिस्ट फॉर्मेशन होती है जो कि सर्जिकली रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। So that was all about the submandibular gland and the sublingual salivary gland. होप सो यहाँ तक आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हो। मैंने रिलेशंस जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, मैंने पूरी कोशिश की है 2 घंटे 3 घंटे लगा के सारा कुछ जनरेट किया है, सिर्फ आपके लिए कंपाइल किया ताकि आपको इस बुक लाजमी रीड करें। लेकिन ये बुक ही है आपकी, इसको जो बुक रीड करें और यहाँ इसको भी रीड करें, और जो पॉइंट्स बुक में मिसिंग है वो इन नोट्स से ऐड करते जाया करें। और इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो पेस्ट कर दूंगी, आपने वहाँ से नोट्स डाउनलोड करनी हुए तो कर लिएगा। थैंक यू सो मच। इसको फर्दर शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।